میں نے بہت بار کہا ہے اس بات کو کہ گمراہی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ گمراہی کہاں ہے، لیکن آپ گمراہوں میں تبلیغ کرنے نہیں جا رہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تبلیغ گمراہ کا حق ہے، اور اگر حقدار کو حق اس کا نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے جواب دہ وہ ہیں جنہیں صحیح راستہ معلوم ہے، اور وہ گمراہ کو راستہ بتانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ صرف نذرانوں کے لیے تقریر کرنا، نذرانے کے لیے تبلیغ کرنا، نذرانے کے لیے جلسہ کرنا، اور جہاں ہاتھ چومے جائیں، پیر چومے جائیں، وہاں جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حصول دنیا کے لیے ہوتا ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں علماء ہر سال ہمارے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مرکز کی کیا ذمہ داری ہے؟ مرکز یہ کہتا ہے کہ فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہے، فلاں بددین ہو گیا، لیکن آپ کی موجودگی میں اگر وہ غلط راستے پر چلا گیا اور آپ نے اسے اس غلط راستے میں جانے سے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو جتنا ذمہ دار وہ ہے اتنے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ گمراہی ہے، گمراہی بڑھ رہی ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، وہابیت بڑھ رہی ہے، مرکز خاموش ہے۔ مرکز کی جو ذمہ داریاں ہیں، مرکز اپنی ان ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہا ہے، ایمانداری سے کام نہیں ہو رہا ہے، صرف دولت، حصول دولت کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل روز محشر ان سب کا جواب طلب ہوگا جو اس قسم کا انتشار پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے کیا حالات ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں، کس قسم کی مسلمانوں کے سامنے پریشانیاں درپیش ہیں۔ اس کے باوجود ان تمام چیزوں سے کیسے نبرد آزما ہو، کیسے ان چیزوں تکلیفوں سے اپنی ملت کو نجات دلائیں، ان سب پر غور کرنے کے بجائے فضولیات میں الجھا جاتا ہے۔ اور کن فضولیات میں الجھے ہیں؟ ان فضولیات میں الجھے جس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ میں آج ایک بات کہتا ہوں، آپ نے بھی ہزاروں بار نام سنا ہوگا، حضور برہان ملت رحمت اللہ علیہ، نام سنا؟ مفتی اعظم نے اعلی حضرت کے روحانی پسرے روحانی کی، اور اعلی حضرت نے انہیں برہان ملت نام دیا، اور اتنا مشہور ہوا یہ نام کہ ان کا اصل نام، میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء سے پوچھو جا کے، ان کے علم میں نہیں ہے کہ اصل نام کیا ہے برہان ملت کا۔ تو ان لوگوں نے مسلک اعلی حضرت کو اپنے طریقے سے مولڈ کر لیا ہے ایک طرح سے، اور مسلک اعلی حضرت ایسا لگتا ہے، ابھی اجمیر کا جو واقعہ ہوا ہے، پوری دنیا میں بریلی کی جو بدنامی ہوئی ہے، وہ بدنامی ان لوگوں کی لاپرواہی اور غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے ہوئی۔ اگر انہوں نے یہ غیر ذمہ دار رویہ نہ اختیار کیا ہوتا، میں نے جو کوشش کی، میں نے جو پہل کی، اس پر کم سے کم حمایت نہ کرتے تو خاموشی اختیار کر لے، تب شاید یہ واقعہ وہاں پیش نہ آتا۔ آج اجمیر شریف، ہم کسی بھی حالت میں اجمیر شریف کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اجمیر شریف میں حاضری دینا ہی ہے، وہاں کے ہم غلام ہیں، اور غلام کی ذمہ داری ہے کہ حاضری دیتا رہے۔ اب وہاں کا عالم یہ ہے کہ وہ تو جا کے ہوٹلوں میں پوچھ رہے ہیں بریلی کا کون کون ٹھہرا ہے، وہ نکالو اسے ہوٹل سے۔ تو یہ بریلی کی بدنامی، وہاں کوئی جائے اور کہے کہ میں بریلی سے آیا ہوں، اسے حقارت سے دیکھا جا رہا ہے، نفرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بریلی سے نفرت آپ لوگ پیدا کرنے کا جو کام کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہوں یار، اللہ کے واسطے، اللہ اعلی حضرت کے راستے پہ آ جاؤ۔ تم لوگوں نے اعلی حضرت کا راستہ ترک کیا ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا میں بریلی بدنام ہو رہا ہے۔ مسلک اعلی حضرت، لوگ
तुम लोगों के तरीक़े कार की वजह से आज आला हजरत से जो लोग दूरी बना रहे हैं, आला हजरत का मसलक फैलाना, आला हजरत का मसलक समझाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुमने अपने जाती मफाद, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए तुम लोगों ने बरेली को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। आज मुल्क के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर किन लोगों से लड़ना है, किन फितरों से लड़ना है, इस तरफ तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क के मुसलमानों को कैसे मुत्तहिद किया जाए, कैसे उनको सैलाब, फिरका परस्ती के सैलाब में घिर चुके हो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस सैलाब से निजात हासिल कर सकते हो। और अगर एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ोगे तो इस सैलाब में डूबने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अपने बच्चों के लिए तुमने जैसी गुजार ली गुजर गई, ऐश कर लिया तुमने, दुनिया कमा ली तुमने, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई रास्ता बेहसी का बना के जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान में तुम्हारे बच्चों को रहना है, कैसे रहना है, जिल्लत के साथ रहना है, गुलाम बन के रहना है, या बाइज्जत तरीके से रहना है, फैसला तुमने करना है। इन तमाम फजूलियात को नजरअंदाज करो और अल्लाह का काम समझ के जिस दिन काम करना शुरू करोगे, दौलत के लिए काम मत करो। मैं आज तुमसे कहता हूं कि आला हजरत की अहमियत और इज्जत, आला हजरत बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते, आला हजरत बहुत दौलत वाले थे। आला हजरत की दुनिया में इज्जत इसलिए नहीं है, मुफ्ती आजम चाहते बिल्डिंगें बना सकते थे, कारें नहीं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खरीद सकते थे उनके मुरीद जो चाहते। लेकिन मुफ्ती आजम का मैंने तरीका देखा है कि अगर किसी मुरीद ने उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट दिया है तो हजरत ने सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया और ये कहा कि ये तज़िये माल है। हजरत ने हमेशा, हजरत मुफ्ती आजम ने हमेशा थर्ड क्लास से सफर करना पसंद किया। तुम लोग आला हजरत और मुफ्ती आजम के तरीके से हट गए हो, इसी वजह से पूरी दुनिया में आज जो माहौल बनता जा रहा है, बरेली से लोग जो दूरी बनाते चले जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह तौकीर नहीं है, तुम सारे लोग जिन्होंने मसलक आला हजरत को थोड़ा थोड़ा तकसीम कर लिया है, थोड़ा तौसीफ लेके घूम रहा है, थोड़ा सुबहानी मियाँ लेके घूम रहे हैं, थोड़ा अज्जत लेके घूम रहा है, थोड़ा मन्नानी मियाँ लेके घूम रहे हैं। ये जो मसलक के तुमने टुकड़े किए हैं और मसलक को अपने अपने तरीके से चला रहे हो, इसी की वजह से तबाही आ रही है। तौकीर अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा काम कर रहा था और काम कर रहा है और इंशाअल्लाह काम करता रहेगा। तुम लोगों से कहता हूं, तौकीर खराब है, तौकीर से मत मिलो, लेकिन तुम लोग आपस में मुत्तहिद होकर बैठो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। सब लोग सर जोड़कर बैठो कि इन मुश्किलों, इन परेशानियों से कैसे पार लगाया जाए। अगर सर जोड़कर नहीं बैठोगे, तबाही तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। तुमने जो बदनामी अजमेर शरीफ में कराई है, दुनिया ने देखा है कि फितरा तुमने किया वहां जाके। हमारी तो कोशिश ये है और आला हजरत ने हमें ये बताया है कि दुरूद और सलाम जारी रहना चाहिए। जहां नहीं हो रहा है, कोशिश करो कि वहां भी दुरूद और सलाम हो जाए। हमने तो देवबंदियों के जलसे में जाके दुरूद पढ़वाई है। दुरूद और सलाम जारी रहना चाहिए, कोशिश ये होना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दुनिया का मकबूल तरीन सलाम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन या नबी सलाम अलैका भी हमारा सलाम है, सलाम तो हुजूर के लिए है। अगर वहां पे तुम वो सलाम पढ़ लेते तो परेशानी क्या थी? लेकिन तुम असल में सलाम के लिए नहीं लड़ रहे थे, असल में तुम अपने मफाद के लिए लड़ रहे थे, अपने आप को शो करने के लिए, अपने आप को मजबूत ताकत बताने के लिए। ये तरीका अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं अपनी बरेली से मोहब्बत करता हूँ, मरकज से मोहब्बत करता हूँ, मसलक आला हजरत से मोहब्बत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मसलक आला हजरत जो तुम लोगों ने इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है, इसको बांटो, इसको फैलाओ, किसी सूरत से काम करो।
अल्लाह का वास्ता देता हूं तुम्हें, आला हजरत का वास्ता देता हूं, मुझसे तासुब मत करो। मैं तो अल्लाह का काम कर रहा हूं, मैं दौलत नहीं कमाता, मैं नजराना नहीं लेता, मैं मुरीद नहीं करता, मैं तकरीरों में नजराने नहीं लेता, मैं अल्लाह के वास्ते काम कर रहा हूं, पैसों के वास्ते काम नहीं कर रहा हूं। तुमसे भी मैं बार बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो, ये मेरी गुफ्तगू आम हो, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूं, और ये कहीं इधर उधर चली जाएगी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। और जिस दिन मैं देख लिया और मैंने समझ लिया कि तुम लोग, मोहर लग चुकी है तुम लोगों पे, तुम सुधरोगे नहीं, और तुम्हारे एक एक अमल, कहां कहां शादियां करते हो, किन किन से याराना करते हो, किन किन से दोस्तियां करते हो, किन किन से रिश्तेदारियां करते हो, कैसे कैसे काम करते हो, तुम लोग अपने तरीके पर अपने तरीके को दुरुस्त नहीं किया। मेरी इन थोड़ी सी बातों को तंबीह समझो, क्योंकि मैं आला हजरत से मोहब्बत करता हूं और मरकज को चाहता हूं कि मरकज रहे। मरकज को तुम लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा तकसीम कर लिया है, सर जोड़ के बैठो और मरकज को मरकज बनाओ, मरकज के लिए काम करो। मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी बातों से तकलीफ हुई होगी, दिल आजारी हुई होगी, लेकिन आला हजरत और मुफ्ती आजम के तरीके पर आ जाओ। हमने मुफ्ती आजम का तरीका अपनी आंखों से देखा है, मुफ्ती आजम ने जो हमें तरीका सिखाया है। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, हुजूर बुरहाने मिल्लत का नाम तुम्हें नहीं पता? कैसे आला हजरत के चाहने वाले हो कि आला हजरत के पिसर रूहानी का नाम नहीं पता? अब्दुल बाकी नाम है उनका, अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह अलैह। और आला हजरत मुफ्ती आजम ने उन्हें भेजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मखलूत बोर्ड है, जिसमें हर फिरके के लोग हैं, उस बोर्ड में जाइए, अपनी बात रखिए, अपनी बात कीजिए, और वो ता हयात उस बोर्ड के नायब सदर रहे। मुफ्ती आजम की मर्जी के बगैर नहीं रहे। अपने तरीकों को दुरुस्त करो। तुम सलाम वाले हो, तुम दुरूद वाले हो, तुम जहां जाओगे वहां दुरूद और सलाम होगा, और तुम सबसे दूरी बना लोगे तो जहां सलाम हो रहा है वहां भी बंद हो जाएगा। अजमेर शरीफ वालों ने आला हजरत के सलाम पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि तुम्हारे तरीकों से नाखुश होकर आला हजरत से उन्हें चिढ़ पैदा हुई है। वरना आला हजरत से तो मैं कहता हूं कोई चिढ़ ही नहीं सकता। जो खानकाह चला रहा है, जो गद्दे नशीन है, जो मुजाविर है, किसी भी कीमत पर हर एक सज्जादा नशीन, हर एक गद्दे नशीन आला हजरत का मरहूने मिन्नत है कि आला हजरत की अपनी कोई खानकाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने खानकाहों के वकार का काम किया, खानकाहों को बचाए रखने का काम किया। तो तुम्हारे तरीकों की वजह से आला हजरत से लोग जो चिढ़ पैदा हो रही है, वो तुम्हारे तरीके की वजह से हो रही है। इसलिए अपना तरीका दुरुस्त करो। अखलाक, मोहब्बत, इनकिसारी अगर नहीं है तो तुम तबलीग कर ही नहीं सकते। न मसलक फैला सकते हो, न मजहब फैला सकते हो, तुम सिर्फ फितना फैला सकते हो। हुसूल दौलत अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है। मैं तो बहुत गुर्बत में गुजारा कर रहा हूं, और मैं फिर तुमसे कहता हूं कि आला हजरत की दौलत की वजह से इज्जत नहीं, मुफ्ती आजम की दौलत बहुत बड़े बाप के बेटे थे, इस वजह से इज्जत नहीं, मुफ्ती आजम के तकवे की वजह से, उनके अमल की वजह से उनकी इज्जत है। और तुम अगर ये समझते हो कि तुम बहुत बड़े खानदान वाले हो, बहुत बड़े दौलत वाले हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत है, तो गलत फहमी में हो। तुम्हारी इज्जत सिर्फ आला हजरत से निस्बत की वजह से है। आला हजरत के मेहमानों की खिदमत करो, उनके कदम चूमो, तभी तुम्हारा तबलीग के लिए निकलो, मसलक की तबलीग के लिए निकलो। और गुमराही कहां है ये तुम्हें पता है। नजराने वाली जगहों पर मत जाओ, गुमराही वाली जगहों पे जाओ। ऐसी जगह पर जाओ जहां तुम जाओ लोगों को पता चले आला हजरत वाले आए हैं,
पत्थर मारे जाए तब ये समझा जाएगा कि वाकई तुम आला हजरत के चाहने और आला हजरत के मसलक को फैलाने वाले लोग हो, वरना यही समझा जाएगा कि आला हजरत का मसलक कोई ऐसा एक छोटी सी जमात है, कोई नया मसलक है और ये लोग खुराफाती लोग हैं। आला हजरत के मसलक को फैलाना है तो अपने तरीके को दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर आप लोगों से अर्ज करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको मसलक हक पर कायम दायम रखे, हमारा खात्मा बिल खैर इसी मसलक में हो। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला हमारे सामने जो दरपेश मसाइल हैं, हमारे सामने जो मुश्किलात खड़ी हैं, जो फिरका परस्तों ने हमारे खिलाफ साजिशें रची हुई हैं, जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों से अल्लाह तबारक तआला हमें निजात अता फरमाए और मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। सरवर चिश्ती की बात मैं नहीं करता, मैं कहता हूं कि अगर खुदाम पर आपको एतराज है, उनके मैंने बार बार ये बात कही है कि एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बेटों पर वो पूरी तवज्जो बराबर देता है, चारों उसके बेटे हैं, लेकिन एक बेटे को वो देखता है कि गलत सोहबत में जा रहा है, गलत उसके मामलात होते चले, उस बेटे पर खास तवज्जो दी जाती है, उस पर खास नजर रखी जाती है ताकि बहक ना जाए, भटक ना जाए। तुमने मुफ्ती आजम को मैंने देखा अजमेर शरीफ में किस तरह हाजिरी दिया करते थे। पहली बार मेरी अजमेर शरीफ में हाजिरी, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा था मैं, मुफ्ती आजम के साथ गया था, तो मैंने वो सब तरीके देखे हैं। गुमराही अगर आ रही थी, उनमें राफजियत आ रही थी, तुम मरकज थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उनको गुमराह होने से रोकने की। और आज भी तबलीग के दरवाजे तो बंद नहीं हुए, तौबा के दरवाजे तो बंद नहीं हुए। तुम्हें अल्लाह ने इस लायक बनाया है, और अगर तुमने काम नहीं किया तो ये मत समझना कि बच जाओगे, जवाब तुम्हारा तलब होना है, जवाबदेही से बचना है। तो आज से ये अहद कर लो कि अब तक जो कुछ हुआ, हम भटके हुए थे, भूले हुए थे, लेकिन आज के बाद हम तौबा करते हैं कि अब हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, बल्कि आला हजरत ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलेंगे। और आला हजरत का काम ईमानदारी के साथ